Bismillahirrahmanirrahim. I am Aziza Munir, and today we'll be talking about analysis of time series, which we have done in last lecture as well. But we are talking about more towards the calculative tabulations, which we have discovered in last lecture. We have taken into account lots of practical examples and lots of areas where the time series is applied actually, but we have not gone through actual numerical perspective of analyzing time series, that how the data is plotted against various methods of time series, and how it looks like and how it is interpreted. So that is something which we are going to discover today. We will be talking about that what actually forecasting is towards time series. We have touched the glimpse of it in last lecture, but today we will be disclosing it in detail, touching all possible corners, that in which particular area the forecasting is meant to be the most accurate, and in which particular module of in which we are actually calculating we are applying the tabulation, in which particular tabulation forecasting stands for what. So that is something which will be the domain of this lecture today. Then we'll be analyzing time series and its components, smoothing a data series through moving averages and exponential smoothings. And then we'll be analyzing forecasts during the trend models of simple linear regression and auto-regressive models. तो ये moving averages, exponential smoothing, simple linear regression और auto-regressives, ये हमने last time discuss नहीं किए थे कि अगर हमारे पास कुछ tabulations होती हैं या कुछ areas ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमने details में apply करना होता है time series को, तो उसका क्या रिजल्ट आता है forecasting के ऊपर और हम किस तरह से उसको actually monitor कर सकते हैं. We have discussed forecasting in last lecture as well, but just to create a symmetry for today's one as well, we will be just analyzing in short that what is forecasting. Forecasting is a process of predicting future event on the basis of current data, on the basis of present conditions, on the basis of presently formulated data. We take the analysis that how this data is being maintained, and on the basis of this maintenance we predict some strategy, and we predict some future considerations, that if the trend is going in this direction, might be in future the trend will follow the similar direction. So that is something, or it will vary because of certain external or internal factors. So that is something which is the future prediction actually, which is very important once you are maintaining these strategies, once you are creating these strategies for future. Then we are underlying, then forecasting is meant for underlying basis for all business decisions. That is for production purposes, for procurements, for purchases, for inventory maintenance, for personnel, meaning human resource management, and for all possible administrative facilities which we are providing to our employees in every single facet of business. When we are requiring the future prediction, and when we are anticipating that what is required, what is being done in future regarding this particular data in hand, this involves forecasting, which is a component, very important component of time series. Forecasting approaches might be quantitative or qualitative. In qualitative, we use situation in a vague form. When very few set of data is available, when very little data is available, and we talk about some new products and some new technologies for acquiring the future information, for generalizing for the future information, we're basically talking about the qualitative set of data, which involves multiple intuitions. Intuition is your thinking, your cognition, your own personal approach towards a particular situation, and your own experience as well will be something which is related to the qualitative structure of the data. Then we are forecasting on sales on internet, that if on internet we have assumed that this much percentage of sales is done in past, then in next few months what will be the predictive sales. While in quantitative approaches,
We talk about situation which is more stable through historical data which is already existing. So that is something which is more calculative in nature, which is working on more tabulations, which is working on more numerical analysis, right? So qualitative के केस में तो हम apply कर सकते हैं अपनी thinkings भी, अपना personal knowledge भी, अपनी personal intuitions भी, या previous experience जिसकी basis के ऊपर, which is undoubtedly there when you are making quantitative approach as well. But the interference of your experience and your intuition in quantitative data is comparatively lesser. So when you're predicting a decision, when you're making a forecast on the basis of quantitative analysis, in that case you are making you're stabilizing your approach towards the quantitative figures which are already there existing. So we are talking about the existing products, we are talking about the current technology which involve multiple mathematical techniques, for example forecasting sales of color televisions. तो एक particular area में, एक particular context में जो भी हमारे पास application होती है data की, उसकी basis के ऊपर हम forecasting करते हैं, which is more mathematical in nature. So that is a difference between qualitative and quantitative forecasting methods. In quantitative forecasting, we select several forecasting methods. Now, first is that we forecast from past, then we evaluate forecasts. Evaluation भी एक बहुत important चीज़ है कि अगर हमने forecast कर लिया तो उसके अंदर contingency planning का कोई margin है या नहीं है, meaning कि अगर हमारी forecast के अंदर कुछ variable factors which are uncontrollable, अगर वो अपना control उस forecast के ऊपर करते हैं जो हमने create की है, तो definitely हमारे results जो है वो change हो जाएंगे. इस केस में हमारे पास कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो कि ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड करें कि अगर करंट ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता, अगर करंट फोरकास्ट फॉलो नहीं हो सकती, तो फिर हम कौन सी अप्रोच अप्लाई करेंगे. तो उस केस में हम इवेल्युएटिंग फोरकास्ट के ऊपर बात करते हैं. Then when we are evaluating, we are proposing multiple other alternative solutions for the similar situation, right? So for one particular situation, we might be talking about multiple areas in which the particular application can be made. तो अगर एक context में application maintain नहीं हो सकती because of certain external factors interference, तो वहाँ पर फिर हम contingency planning करते हैं. Contingency planning is an alternate route to reach the similar destination, to reach at the similar goal. आपने एक specific analysis किया हुआ है कि अगर ये रास्ता feasible नहीं होगा तो हम दूसरे रास्ते से इस point को approach कर लेंगे. तो वो जो दूसरा point है approach करने का, this is known as contingency planning. तो जब हमारे पास multiple alternative plans होते हैं to achieve one single goal, तो उसमें से हम best select करते हैं. बेस्ट किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, दोबारा हम फिर अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल टेक्निक्स को, और फिर वी विल बी एनालाइजिंग दैट व्हाट इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड. So forecast for future is again a quantitative forecasting, monitoring continuously forecast accuracy. कि एक forecast हमने future prediction हमने दे दी है, उसको हमने फिर time to time monitor भी करना है, उसको हमने time to time analyze भी करना है कि हर time के ऊपर जो हमने forecast दी थी कि whether it is generating the right results or not. So that is something which is right coming in the domain of quantitative forecasting. In quantitative forecasting methods, multiple approaches have been utilized. Multiple applications can be made once you are analyzing the quantitative forecast method. For this, majorly we have divided the quantitative forecast into two areas, which is time series models and the causal models. Once you are talking about the causal model, I am putting attention towards the causal first, because that is something which is more applicative once you are making extremely long-rooted decisions on the basis of previously corrected data, and the data is very, very complex in nature. So if we are talking about
something which is complex, which is not very simple to understand. So then we are analyzing the cause and effect relationship of one variable over another. So this cause and effect relationship is usually applied in regression and correlation. So correlation is not coming exactly in the domain of time series, but we take regression analysis as this is a trend analysis towards the causal models of developing quantitative forecast. So in regression case, we talk about that model or that area in which we consider two variables, and one variable is affecting the other variable in a way that how much is the tendency of effect which is created by one variable on the other. So that is the regression, which is in time series taken as autoregressive model. As far as the regular time series models are concerned, which are the traditional models, and they are applied usually in the domain of simple data collections. So that involves moving averages, exponential smoothing, and trend models. What are they and how they'll be plotted on the time series evaluation and forecasts we'll be touching in a couple of minutes. Okay, now what actually time series describes? This describes evenly spaced data. We discussed it in last lecture as well, that the condition or the major characteristic of the time series data is that it has to involve two properties. One is that it won't have any hiccup, right? Meaning the data should not be missing. And secondly, this should be smooth, and it should be divided into equal parts. So if these two properties are existing in any data, meaning one, that the data should be divided into equal parts, equal samples, or in symmetry, and secondly, it won't have any gaps, it won't have any missing approach. So that is an evenly spaced numerical data. So time series has to be maintained, has to be analyzed over the evenly spaced numerical data, where we are obtaining the observing responses of variables from regular time periods. Secondly, the forecast should be based on past values. As the forecast is, as we are talking about the accuracy of the forecasts, accuracy will be purely meant on the basis of quantitative approaches. It will be totally based on the mathematical approaches. It will be totally based on the tabulations which we conduct on the previously collected data, without involving any previous experience or intuition, which is another category of using the forecast method. So here we assume that factors influencing past, present, and future will continue. That whatever has happened in past and whatever is happening in present form will last in future as well, or will be followed in future trends as well. For example, if 1995 to 1999 sale is given to us in dollars, say for example, which is 78.7 to 92.1, which shows that initially the trend was decreasing, that from 78.7 it is reduced to 63.5. Here it is decreasing. Between 78.7 to 63.5 it is decreasing in nature, but afterwards from 1996 to 1999 it is increasing from 89.7 to 93.2 first, and then a slight decrease from 92.1. So that shows that a kind of graph will be maintained, that initially it is decreasing, then increasing for the next year, then again increasing for the next year, and then slight decrease for the last year. So if we are following a kind of trend in the given time series analysis, we can come up with the similar seasonal movements, cyclic movements, that it might increase and it might decrease, but the overall structure of trend will be linear and it will be increasing in nature. So that is something which is the application of time series forecast on the basis of previously collected data. Then time series versus cross-sectional data. What is cross-sectional data? Cross-sectional data is the one in which we collect data for once. Meaning time series के केस में हम data को collect करते हैं multiple time slots में. Cross-sectional के केस में हमने एक ही दफ़ा data collect किया है, और उस data collection में although कि उसका domain बहुत बड़ा था, लेकिन उस domain में जितनी भी values encounter हो रही हैं, that won't make any difference.
हमें जिस चीज़ में टाइम सीरीज में हमें थोड़ा सा जो एज है वो ये है कि हमने मल्टीपल टाइम पीरियड्स को सिलेक्ट किया और डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए उन सारे हेड्स को कंबाइन किया है। Therefore, टाइम सीरीज डेटा इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में चलता रहता है ये डेटा, एंड कलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस विद इक्वली स्पेस्ड पीरियड्स ऑफ टाइम्स के इक्वली डिवाइडेड पीरियड्स में हमने डेटा को कलेक्ट किया है और उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको स्टडी करते हैं। Contrary to restrictions placed on cross-sectional data, the major purpose of forecasting with time series is to extrapolate beyond the range of explanatory. So, when we are talking about the restriction which is made by the cross-sectional data, वो ये है कि हमने जो रिस्ट्रिक्शन क्रॉस सेक्शनल डेटा की है वो ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, बट फॉर वन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लेकिन अगर हमने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी अप्रोच मेंटेन करनी है, रादर एक्सट्रापोलेट करना है, तो उस केस में हमें टाइम सीरीज का डेटा चाहिए। सो दैट इज एन एज of time series data over cross-sectional. And remember that cross-sectional data is comparatively easy to collect and interpret as compared to the time series one. Time series is dynamic and it does change over time. So another edge of time series data is that this particular data involves multiple changes as well. इसके अंदर हम थोड़ा सा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। whatever is being stated, whatever is being collected is stated in the similar way. लेकिन जो टाइम सीरीज का डेटा है वो ज़्यादा डायनामिक होता है और उसके अंदर चेंज का मार्जिन एग्जिस्ट करता है। When working with time series data, it is paramount that the data is plotted so the researcher can view the data. क्रॉस सेक्शनल के केस में हमारे पास क्योंकि मल्टीपल ईयर्स की रीडिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से हम उस डेटा को बहुत डिटेल में रीड नहीं कर सकते। लेकिन जो टाइम सीरीज का डेटा है वो हमारे पास मुख्तलिफ ईयर्स में कलेक्ट हुआ होता है, जैसे कि इस ग्राफ में नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ ईयर्स में एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमने मुख्तलिफ ईयर्स दिए हुए तो बहुत सारी टेंडेंसीज डेटा की इसमें हमें नज़र आ रही हैं कि एक टाइम के ऊपर किस टाइम पे डेटा का ट्रेंड इंक्रीजिंग है। फर्स्ट 3 years में इंक्रीजिंग है फॉर एग्जांपल, देन इन 4th year इट इज स्लाइटली डिक्रीजिंग, देन इन द 5th year इट इज अगेन इंक्रीजिंग, then for the 6th year it is decreasing, and for the 7th it is again moving towards the incremental side. So a kind of approach is maintained which is again linear in nature, and this kind of study can only be made in time series data, but it cannot be studied, it cannot be evaluated once we are talking about the cross-sectional one. In time series, when you talk about time series components, it includes first of all the trend, second is the cyclic, then irregular and seasonal. ये 4 methods हैं time series के, ये 4 components हैं time series के जिसको हम डिस्कस करते हैं या जिसकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइम सीरीज को के डोमेन को थ्रू ट्रेंड, थ्रू साइक्लिक एंड इरेगुलर एंड सीजनल। इन 4 मूवमेंट्स में हम डेटा को हम टाइम सीरीज को के डोमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। First of all, we talk about the trend components. Persistent overall upward or downward pattern, meaning जो ट्रेंड कंपोनेंट है वो जिस तरह के एक हमने लीनियर ट्रेंड की बात की है, एक एग्जांपल है लीनियर ट्रेंड, और भी इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, क्वाड्रेटिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, पैराबोलिक भी हो सकता है, लेकिन ये एक ट्रेंड है जो कि परसिस्टेंटली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होता है। तो परसिस्टेंटली अगर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है तो वो एक कंटिन्यूस आपको फ्लो बताता है या सिमेट्री बताता है डेटा की, विच इज इवेल्युएटेड अंडर ट्रेंड। ड्यू टू पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी हम इस ट्रेंड को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें हम मुख्तलिफ ईयर्स की ड्यूरेशन की बेसिस के ऊपर, जो कि मंथ्स में भी हो सकती है, क्वार्टर्स में भी हो सकती है और ईयर्स में भी हो सकती है, उसमें हम रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करके उसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रेंड के फॉर्म में डेटा कलेक्ट होता है।
ट्रेंड कंपोनेंट आपको या तो ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड बताएंगे या ओवरऑल डाउनवर्ड मूवमेंट बताएंगे, और एक मल्टीपल ईयर्स की कलेक्शन ऑफ डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ में तो हमारे पास इस किस्म की एक डिस्क्रिप्शन आती है, विच यहाँ इस एग्जांपल में हमें सेल्स को डिस्क्राइब किया हुआ नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर सेल्स जो है उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। समटाइम्स दे आर इंक्रीजिंग एंड समटाइम्स दे आर डिक्रीजिंग ऑन ईयरली बेसिस, लेकिन ओवरऑल जो इसका ट्रेंड फॉलो हो रहा है दिस इज लीनियर एंड अपवर्ड। साइक्लिक अगेन ये भी एक ट्रेंड है जो कि आपको मूवमेंट्स बताता है। जो लीनियर ट्रेंड है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन बताता है। साइक्लिक के अंदर आपको पता लगता है कि इसमें क्या क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, मीनिंग कि वही वाली सी चीज़ रिपीट होती है कि जितनी परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है उतनी परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, और इट इज़ मूविंग इन अ साइकिल फॉर्म। तो इस केस में हम रिपीटेडली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ट्रेंड में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, लेकिन साइक्लिक के केस में या वो रिपीटेडली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो करता है, रिपीटेडली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस में हम साइक्लिक मूवमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स दे आर इंक्रीजिंग एंड शोइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड्स। सिमिलरली जब हम बात करते हैं अपनी स्टॉक एक्सचेंज की तो उसका फिगर भी जो है वो रिपीटेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ट्रेंड शो कर सकता है। तो यूजुअली 2 to 10 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जिस किस्म के रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं वंस वी आर कलेक्टिंग देम ऑन मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, तो वो हमें साइक्लिक ट्रेंड शो करते हैं। साइक्लिक ट्रेंड जो है उसको हम मेजर करते हैं बिटवीन अ ट्रेंड ऑफ 2 years, 2 स्लॉट्स। ये वही वाली एग्जांपल है जिसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ट्रेंड को डिस्क्राइब किया था इस तरह से। तो ये एक लीनियर ट्रेंड है, लेकिन अगर हमें साइकिल डिफाइन करना है तो हम ये डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से ईयर के अंदर अपवर्ड ट्रेंड आया है। तो ये एक साइकिल होगा, एक साइकिल यहां से लेकर यहां तक, दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। सिमिलरली अगर हम सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड को देखेंगे तो दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ सेकंड साइकिल। तो यहां से लेकर ये भी एक हमारे पास साइकिल बन गया। इफ दिस इज साइकिल 1 सो दिस इज साइकिल 2। तो इस तरह से इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि एक लीनियर फॉर्म में हमारे पास ट्रेंड शो हो रहा है, लेकिन दूसरे केस में हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में जो डेटा है उसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन कौन से ईयर्स में जो डेटा है, जो साइकिल है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, इंक्रीज हो रहा है, और कौन कौन से ईयर्स में वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये 2 साइकिल्स बन गए, अपवर्ड और डाउनवर्ड का, जो कि हमें रिपीटेडली एक फॉर्मेट में वैल्यूज दिखा रहा है, वैल्यूज बता रहा है। सो दैट मे वेरी इन लेंथ, लेकिन इसका जो स्विंग है वो डेफिनेटली स्विंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसकी वेरिएशन, लेंथ की वेरिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगेन इट इज नॉट एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ फुली कंप्लीटली अपवर्ड ट्रेंड, क्योंकि इसके अंदर स्विंग्स शामिल हैं। तो अगर स्विंग्स हैं तो इसका मतलब है कि साइक्लिक कंपोनेंट है। The third component of time series is the seasonal component. In the regular pattern of upward and downward fluctuations, we calculate the seasonal component. Like due to weather and customs changes, so multiple kind of responses are changed towards the consumer side. Last time हमने एक example discuss की थी कि ईद के टाइम पे या रमज़ान के शुरू में या जब स्कूल स्टार्ट होने लगते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर और एंड ऑफ अगस्त, तो शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये ट्रेंड है जो कि हर साल इन टाइम पीरियड्स में मॉनिटर किया जा सकता है, राइट। अगर हम ईद वाला टाइम देखें तो ट्वाइस इन अ ईयर वी फॉलो अ सिमिलर सीजन ऑफ शॉपिंग। तो उस केस में हमारे पास ड्यू टू वेदर कंडीशंस भी या ड्यू टू कस्टम्स कंडीशंस भी, किसी भी एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर आपका जो कंपोनेंट है वो अप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ सीजनल ट्रेंड, जो कि एक ही साल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग्स हमें प्रोवाइड करता है। दिस इज डिटरमिन्ड, इससे पहले वाले जो दोनों ट्रेंड्स थे वो हमने डिटरमिन किए थे मल्टीपल ईयर्स की बेसिस के ऊपर, लेकिन जो सीजनल कंपोनेंट है वो हमने एक ही साल के अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएशंस आ रही हैं ट्रेंड्स के अंदर या मुख्तलिफ वेरिएशंस आ रही हैं कस्टम्स के अंदर, उसको हम मॉनिटर करेंगे। तो दैट इज सीजनल कंपोनेंट।
सीजनल कंपोनेंट अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों स्विंग्स को शो कर सकता है, रेगुलर पैटर्न शो करेगा, और एक साल के अंदर हम इसकी जो रीडिंग्स है उसको मॉनिटर करेंगे। 2-3 लिमिटेशंस हैं इसकी। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन के अंदर हमारी सेल्स जो है गर्म कपड़ों की वो इंक्रीज हो जाती है, और समर्स में वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये दो किस्म के सीजन जो है वो उनका इम्पैक्ट है हमारे ट्रेंड के ऊपर, विच इज सीजनल कंपोनेंट बेस्ड। देन इफ वी कैन नॉट मॉनिटर द रिस्पॉन्स थ्रू आइदर वे, या तो हम उसे ट्रेंड के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ना साइक्लिक के थ्रू, ना सीजनल के थ्रू, लेकिन फिर भी उसके एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक ट्रेंड एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस केस में हम इसको एक इरेगुलर कंपोनेंट का नाम देते हैं। Irregular component is rare to apply, but it is applied. That is something which is not considered कि this can never move actually in the situation, या ये वो situation है जो कि exist नहीं करती। It do exist, but exist rarely. तो इस केस में definitely जो seasonal trend है या cyclic trend है या regular trend है वो apply नहीं होगा, लेकिन इसमें भी एक movement exist करेगी। For example जब हम स्ट्राइक्स की बात करते हैं, या जब हम एक इरेगुलर इवेंट की बात करते हैं, लाइक वॉर्स है या डिस्ट्रक्शंस है या ब्लास्ट्स है, तो अगर हम एक इरेगुलर इवेंट की बात करते हैं तो उस इरेगुलर केस में, या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो और ब्लास्ट्स ही है और टेररिज्म ही है। अगर वो पॉजिटिव है, लाइक फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ अ फेस्टिवल और अरेंजमेंट ऑफ वेडिंग, इन वेडिंग्स को अगर हम अरेंज करते हैं, तो हमारे अपने जो शॉपिंग ट्रेंड के ऊपर या हमारे अपने जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के स्पेंडिंग के ऊपर या कंजम्पशन के ऊपर जो डिफरेंस आएगा उसको हम एक रेगुलर कंपोनेंट में मेजर कर सकते हैं। यूजुअली इट इज based on short duration and which is non-repeated in nature. So irregular component, it do exist, but it exists rarely. Random or irregular component, they are erratic, non-systematic, random, residual and fluctuation based. इसके अंदर कोई symmetry नहीं होती, कोई systematic pattern follow नहीं होता. They are based on random collection of data. और समटाइम्स इरेटिक या एक ऐसी सिचुएशन शो कर रहा होता है जो कि एकदम से अराइज होती है और एकदम से ख़त्म हो जाती है, तो उसके अंदर हम कोई सिमेट्री क्रिएट नहीं कर सकते। ड्यू टू रैंडम वेरिएशंस हम नेचुरल या एक्सीडेंटल कंपोनेंट्स को यूजुअली इसके अंदर शामिल करते हैं, विच आर अगेन यूजुअली शॉर्ट इन ड्यूरेशन एंड नॉन रेपिटेटिव इन नेचर। जब हम टाइम सीरीज की फोरकास्टिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास 2-3 अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं कि टाइम सीरीज के अंदर अगर ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रीड करें तो ये डायग्राम इस तरह से रीड हो रही है कि टाइम सीरीज के अंदर अगर ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, किसी भी किस्म का हो सकता है, वो साइक्लिक या सीजनल या रेगुलर ट्रेंड हो सकता है, तो इफ इट इज एग्जिस्टिंग तो हम ट्रेंड मॉडल्स अप्लाई करेंगे। ट्रेंड मॉडल्स अप्लाई हो सकते हैं ये वाले, या तो ऑटो रिग्रेसिव होगा या एक्सपोनेंशियल होगा या क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर होगा। तो ये चारों के चारों मेथड्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल और ऑटो रिग्रेसिव उस वक्त अप्लाई होंगे जब हमारी टाइम सीरीज एक ट्रेंड फॉलो कर रही होगी। तो ये हमारे पास एक मूवमेंट बन गई है। ठीक है, इस डायग्राम को हम इस तरह से रीड कर लेंगे कि हमारे पास एक ये कंपोनेंट बन गया कि अगर हमारे पास टाइम सीरीज का एक ट्रेंड है, वो साइक्लिक है, सीजनल है या इरेगुलर है, वो जो भी ट्रेंड है उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक ट्रेंड मॉडल सेट करना है जो कि या लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या एक्सपोनेंशियल होगा या ऑटो रिग्रेसिव होगा। लेकिन अगर ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम स्मूथिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे विच आर मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक है टाइम सीरीज के ऊपर, जिसको अब से हम लेटरली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फोरकास्टिंग डेटा टाइम सीरीज का, और किस तरह से हम ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और मूविंग एवरेजेस एंड स्मूथिंग एक्सपोनेंशियल किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि अगर टाइम सीरीज का डेटा जो है वो किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो फिर हम उसके अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल और ऑटो रिग्रेसिव अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, उस केस में हम मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का
मेथड या मॉडल अप्लाई करेंगे. Now here we talk about plotting the time series data. ये जो डेटा हमारे पास, ये जो डायग्राम हमारे पास शो हो रही है, ये जो ग्राफ हमारे पास शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि एक महीने में या एक साल के अंदर जितने भी पैसेंजर्स जो हैं वो इंटर कैंपस बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने x को अज्यूम किया है 12,000 मीनिंग x की वैल्यूज थाउजेंड्स में अज्यूम की है और y की वैल्यूज हमने थाउजेंड्स में अज्यूम की है और x की वैल्यूज हमने ईयर्स में या मंथ्स में या डेज में कंसिडर की है. और वहाँ पर हमने ये एक ट्रेंड एनालाइज किया है विच इज़ मोर साइक्लिक इन नेचर, विच इज़ हैविंग मल्टीपल स्विंग्स. तो इस केस में हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में प्लॉट हुआ है. अगर हमारे पास मूविंग एवरेजेस, सबसे पहले अब हम ये जो हमारे पास जितने भी ट्रेंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 एरियाज को हमने डिस्कस करना है. क्या हमने मूविंग एवरेजेस की बात करनी है तो किस किस्म का डेटा होगा, किस किस्म की प्लॉटिंग होगी, किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी और क्या फोरकास्ट होगी. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में भी किस किस्म का डेटा होगा. जब हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का मेथड अप्लाई करेंगे वो डेटा किस तरह से प्लॉट होगा, किस तरह से रीड होगा और क्या चीज़ शो करेगा. That is again we'll be discussing. Similarly लीनियर डेटा कौन सा होगा, किस तरह का ट्रेंड शो कर रहा है, किस तरह से प्लॉट होता है, क्या फोरकास्ट करता है. क्वाड्रेटिक, एक्सपोजर, एक्सपोनेंशियल और ऑटो रिग्रेसिव भी हम इसी कंसिडरेशन में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डेटा के अंदर किस किस्म के चेंजेस आते हैं तो हम कौन सा मॉडल या कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं और उसकी प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं और उससे रिलेटेड फोरकास्ट किस तरह से कर सकते हैं. तो ये चीज डोमेन है हमारा टाइम सीरीज का. फर्स्ट ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस मेथड which is a series of arithmetic means used only for smoothing purposes provides overall impression of data over time. होता कैसे है and it is used for elementary forecasting. Usually इस किस्म का एक ट्रेंड शो कर रहा होता है कि एक्चुअली हमारे पास जो वैल्यूज है सेल्स की, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन थाउजेंड्स. तो ये 93 से 94 के दरमियान में हमारे पास जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 4 to 6. 94 से 96 तक कंटिन्यूस डिक्रीजिंग है और 96 से 97 तक एक मेजर इंक्रीज है और 98 में एक थोड़ा सा माइनर डिक्रीज है. अगर हम इस ट्रेंड को एनालाइज करें तो मूविंग एवरेजेस के केस में जो हम एवरेज लेंगे इन दोनों सालों की 93 से 95 तक की जो एवरेज लेंगे वो पॉइंट हमारे पास कहीं ये वाला पॉइंट आएगा जो कि ब्लू स्क्वायर से शो हो रहा है कि जब हम 93 से 95 दो सालों की जब हम एवरेज लेते हैं तो हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है या जो रिजल्ट शो होता है वो ब्लू स्क्वायर से शो हो रहा है. सिमिलरली जब हमने 94 से 96 का डेटा लिया है तो हमारे पास जो एवरेज पॉइंट शो हो रहा है वो अराउंड 4 से अबव वैल्यू शो हो रही है विच इज अगेन शोन थ्रू अ ब्लू स्क्वायर. इन दोनों को हमने कंबाइन किया है तो हमारे पास एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया है. सिमिलरली 95 से 97 ईयर्स तक का जो डेटा है, 95 से 97 ईयर्स की जो वैल्यूज हैं उनकी हमने एवरेज ली है, उन 2 सालों की एवरेज ली है. तो हमारे पास जो पॉइंट ग्राफ पे नजर आ रहा है वो थर्ड स्क्वायर है ब्लू कलर का जो कि 96 ईयर्स की या 96th ईयर की सेल्स को फोरकास्ट कर रहा है. और सिमिलरली हमने 96 से 98 तक के डेटा को एवरेज कंसिडर करके एक और वैल्यू प्लॉट की है ग्राफ के ऊपर. तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस का जो ग्राफ है वो एक ट्रेंड शो कर रहा है विच इज लीनियर एंड मोर स्मूथ इन नेचर एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वन. तो मूविंग एवरेजेस का जो हमने प्लॉटिंग की है उसका पर्पस बेसिकली ये है कि जो बहुत जिस डेटा में फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको अगर हमने स्मूथ आउट करना है तो हम उसकी एवरेजेस निकालेंगे ईयरली बेसिस के ऊपर. ये एवरेजेस 2 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, 4-5 साल की भी हो सकती है. जितने भी हमारे पास स्प्रेड है डेटा का उससे हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे जो एवरेजेस हैं वो कितने ईयर्स पे डिपेंड होनी चाहिए. या हम इसको एवरेजेस को हम कंसिडर करते हैं
वो दो मुख्तलिफ एवरेजेस के साथ भी, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स के एवरेजेस के साथ क्या रिजल्ट शो हो रहा है और 5 इयर्स के एवरेजेस के साथ क्या रिजल्ट शो हो रहा है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल इयर्स का डेटा एग्जिस्ट करता है तो हम उसको मुख्तलिफ एवरेजेस के साथ रीड आउट कर सकते हैं और उनके ट्रेंड्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल कंसिडर की है जी, जो कि एक फायरस्टोन टायर की शॉप है जहाँ पर मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर फ्लक्चुएटिंग डेटा हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम 95 टू 99 ईयर्स। 5 साल का हमने डेटा इसमें कलेक्ट किया है और वो जो डेटा हमारे पास शो हो रहा है दिस इज इन थाउजेंड्स ऑफ 20, 24, 22, 26 एंड 25। इसके ऊपर हमने 3 इयर्स की मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट की है, मतलब 3 सालों के अंदर अगर हमने ट्रेंड को मॉनिटर करना है तो हम सबसे पहले 95, 96 और 97 इयर्स की एवरेज को कैलकुलेट करेंगे कि सेल्स की एवरेज निकालेंगे विच इज 20,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास जो 96 का डेटा आएगा, जो 96 की वैल्यू आएगी वो हमने प्लॉट की है यहाँ पर। पहले 3 साल की अगर हमने एवरेज ली है तो वो हमारे पास, क्योंकि एवरेज शो करती है मीडियन मीनिंग सेंटर ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी शो करती है। तो अगर हमने 3 साल का डेटा लिया है 95, 96 और 97 का, तो उनकी जो एवरेज है वो शो करेगी 96 का डेटा, या 96 के अगेंस्ट हम उसे प्लॉट करेंगे विच इज 22। नेक्स्ट एवरेज जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम पहला साल कंसिडर नहीं करेंगे, 95 को कंसिडर नहीं करेंगे और हम लेंगे 96, 97 और 98 का डेटा और 24, 22 और 26 को ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू को 97 के अगेंस्ट प्लेस करेंगे विच इज 24। फिर लास्टली हम 97, 98 और 99 का डेटा विच इज 22, 26 और 25 इनको ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे और इसको प्लेस करेंगे 98 के अगेंस्ट। जब हम 3 इयर्स का डेटा कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ओमिट हो जाएगी, मतलब पहले और आखिरी साल का हम डेटा इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, वो ट्रेंड के अंदर शामिल नहीं होता, बल्कि जो एवरेज है वो हम इसमें एनालाइज करते हैं। इनको अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो एवरेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस किस्म से हम जो डेटा की प्लॉटिंग है वो करते हैं। जो एक्चुअल केस का जो ग्राफ है उसको भी हम प्लॉट करते हैं और जो मूविंग एवरेजेस, मीनिंग अगर हमारे पास ये डेटा है सेल्स का तो इसमें हम एक ट्रेंड के अंदर शो करेंगे 20, 24, 22, 26 एंड 25 नंबर्स को और फिर उसके बाद 96 से लेकर 98 तक तीनों सालों का जो एवरेजेस का जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, कैलकुलेट किया है, वो हम दूसरे ग्राफ के ऊपर प्लेस करेंगे, दूसरी ट्रेंड के ऊपर प्लेस करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो कि इन दोनों ट्रेंड्स में क्या डिफरेंस है, क्या यूनिकनेस है और व्हाट इज फॉलोएबल एंड व्हाट इज नॉट। तो बेसिकली जो पर्पस है मूविंग एवरेजेस का वो ये है कि जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं डेटा के अंदर उसको वो स्मूथ कर दे। जो भी स्विंग्स आ रहे हैं डेटा के अंदर जो एक्चुअली डेटा में एग्जिस्ट करते हैं उन स्विंग्स को खत्म करके वो एक रेगुलर ट्रेंड बता दे ऑन एन एवरेज विच इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। So that is something which is giving us a very firm smoothing approach towards the quantitative side for forecasting. Second method जो है हमारे पास, जब कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता टाइम सीरीज में, अगर ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम या तो मूविंग एवरेजेस को फॉलो करेंगे या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को फॉलो करेंगे। मूविंग एवरेजेस को भी हमने डिस्कस किया है, अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या चीज अप्लाई हो सकती है। In exponential smoothing, form of weighted moving averages हम डिस्कस करते हैं, which are weights decline exponentially and most recent data weighted most. बहुत पुराने ज़माने के डेटा को हम इतनी वेटेज नहीं देते, लेकिन हम बात करते हैं वेट्स की कि एक डेटा के सेट की वेटेज कितनी है, नॉट वेट ऑफ वजन वाली बात नहीं है, वेटेज कितनी है, इम्पोर्टेंस कितनी है। तो जो बहुत पुराना डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने सेल्स को एस्टिमेट करना है तो हम 1980s की सेल्स को मॉनिटर नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन द सेल्स ऑफ 2013 एंड सो ऑन। तो
इस केस में जो हमारे पास ज्यादा वेटेज होगी वो सबसे ज्यादा जो रिसेंट हमने डेटा कलेक्ट किया है विच माइट बी द डेटा सेट ऑफ 2006 टू 2012, इन 6 सालों में जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी डेफिनेटली वेटेज ज्यादा होगी, तो उसको हम कंसिडर ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा। तो ये एप्लीकेशन है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड की। मूविंग एवरेजेस के केस में हम हर किस्म के डेटा को इक्वल वेटेज देते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हम रिसेंटली कलेक्टेड डेटा को कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिक्वायर्ड स्मूथिंग कांस्टेंट, हमें एक W चाहिए होता है जो कि कांस्टेंट वेरिएबल है या कांस्टेंट फिगर है जिसको हमने स्मूथिंग के लिए अप्लाई किया है, जिसकी रेंज यूजुअली एग्जिस्ट करती है 0 से 1 और इट माइट बी चूजन व्हाटएवर कैन बी चूजन एज दिस कांस्टेंट। दिस इन्वॉल्व्स लिटिल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ पास्ट डेटा। इस कांस्टेंट की बेसिस के ऊपर जो हम प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा है उसकी वेटेज को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान भी कहीं बार लाइक करती है। ये एक एग्जांपल है जिसको अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ख्वानज़ा मीटिंग के अगर हम एक अरेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक ट्रेंड फोरकास्ट कर रहे हैं जिसमें हमने 1998 की अटेंडेंस की बेसिस के ऊपर फोरकास्ट करनी है यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। इन दैट केस वी आर टेकिंग अल्फा as 0.02. Alpha is considered as the constant which we were talking about in the beginning, that we are having one particular constant which is determining the entire detail of the data which is less than 1, which lies between 0 and 1, और जो past attendance है वो हमने consider कर ली है 0। तो 95 के केस में हमारे पास 4, 96 में 6, 97 में 5, 98 में 3 और 99 में हमारे पास 7 अटेंडेंस जो है वो शो हो रही है। अल्फा हमने 98 को कंसिडर किया है विच इज़ 0.20 और इसकी बेसिस के ऊपर हम बाकी की कैलकुलेशंस निकालते हैं। बाकी की कैलकुलेशंस इस तरह से निकलेंगी कि सबसे पहला जो ईयर है हमारे पास वो एज इट इज़ हम कंसिडर करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। जो नेक्स्ट ईयर है 96, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ और 0.2 जो है वो डिटरमिन करेगा, मीनिंग जो प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा है, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, ये जो W है ये हमें वेटेज प्रोवाइड कर रहा है विच इज़ 0.2% और हमने मल्टीप्लाई किया है Y को W के साथ और फिर 1 माइनस W करके उसका प्रोडक्ट लिया है प्रीवियस रीडिंग के साथ, और प्रीवियस रीडिंग जो है वो हमने कंसिडर कर लिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ I को। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कहाँ से जनरेट होगी? वो हमारे पास जनरेट होगी कि जो भी हमने एक्सपेक्टेशंस की है अटेंडेंस के अंदर वो हमारे पास स्मूथ करती हैं हमारी वैल्यूज़ को। 0.2 हमने कंसिडर किया है या 20% हमने कंसिडर की है वेरिएशन जो कि W से हमने डिपेक्ट की है। 4 को हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसकी वैल्यूज़ को हम निगेट कर देते हैं। 95 ईयर्स की जो फर्स्ट ईयर है उसकी वैल्यू को हम निगेट करते हैं। 96 ईयर में हमने जो Y है उसको मल्टीप्लाई किया है या जो 96 की जो अटेंडेंस है उसको मल्टीप्लाई किया है W के साथ विच इज़ द कांस्टेंट फिगर और ऐड किया है उसका रिजल्ट इन 1 माइनस 0.2 इंटू 4, जो हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है 4.4 का, जिसको हमने फोरकास्ट करके कंपेयर कर लिया है अराउंड 4 जो हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यू है ये शो कर रही है प्रीवियस ईयर की वैल्यू। सिमिलरली जो 97 की वैल्यू है वो हमारे पास शो हो रही है एक्चुअली 96 की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिमिलरली 97 की जो वैल्यू है वो हम शो करा रहे हैं 98 की एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर विच इज़ 4.5। सिमिलर इज द केस विद 99 कि जो 98 की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो हम शो कर रहे हैं 99 के अगेंस्ट, और इन सब की हम एक एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट W का है वो स्मूथ करता है वैल्यूज़ को ऑन द फॉर्म ऑफ देयर एवरेजेस, और ये एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं while taking the while taking the product with the W वैल्यू, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ली है जो कि हमने जिसका रिस्पॉन्स हमने 1 में से निगेट कर दिया है, और जो भी हमारे पास फिगर आता है
उसको हम नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड फोरकास्ट के अंदर मेंशन करते हैं और यहाँ से ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं। इस पर्टिकुलर स्मूथिंग मेथड के अंदर जो एज है या जो एडवांटेज है वो ये है कि हम पहली और आखिरी वैल्यू को निगेट नहीं करते, जो कि हम एवरेजेस के केस में करते हैं। सिमिलरली एवरेजेस के केस में हमारे पास जो डेटा है समटाइम्स इनिशियल जो एक्सट्रीम वैल्यूज है समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं आपके डेटा की फोरकास्ट को, जो कि एक ड्रॉबैक है एवरेजेस मेथड का या मूविंग एवरेजेस का, जो हमने इस मेथड के अंदर स्मूथिंग मेथड के जो दूसरा स्मूथिंग मेथड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड उसमें कवर कर लिया है। और इसमें हम प्रीवियस ईयर की कलेक्टेड या टेबुलेटेड वैल्यू को नेक्स्ट ईयर की फोरकास्ट के लिए यूज करते हैं। Then comes the model trends which are based on that data which is following any trend. अगर हम टाइम सीरीज को किसी ट्रेंड के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, या तो वो ट्रेंड है, वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, या वो एक्सपोनेंशियल है, या वो ऑटो रिग्रेसिव है, तो उस केस में हम फोरकास्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर हम एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो कि या तो सीजनल होगा या साइक्लिक होगा या किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, उस केस में हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल और ऑटो रिग्रेसिव को अप्लाई करके देखते हैं कि फोरकास्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। First of all, the linear time series forecasting. Very simple, based on coded years data and used for forecasting trend. Relationship between response variable y and time x is a linear function. इससे पहले हमने एक ही जो लिमिटेशन थी नॉन ट्रेंड बेस्ड टाइम सीरीज डेटा की, वो ये थी कि उसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल फैक्टर स्टडी हो रहा होता था। मतलब एक साल के अंदर माइट बी सेल्स कितनी है, तो उस साल में जितनी भी सेल्स है उसको हमने डिस्कस करके एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है थ्रू स्मूथिंग मेथड या थ्रू मूविंग एवरेजेस, और हमने वहां से एक फोरकास्ट डेवलप की है। लीनियर के केस में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं कि सेल्स भी हो सकती हैं और सेल्स ऑफ 2 years भी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल, और उस केस में हम देखते हैं कि एक साल का दूसरे साल के साथ क्या इम्पैक्ट है, या एक सेट ऑफ डेटा का दूसरे सेट ऑफ डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर हम लीनियर फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यूज करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ईयर्स हमारे पास है 95 से 99 तक, जिसमें हमने कोडेड ईयर हमने कोडिंग हमने इस तरह से कर ली है कि 95 ईयर को हमने 0 ईयर कंसिडर किया है, 96 को हमने फर्स्ट ईयर कंसिडर किया है, 97 को सेकेंड और 99 को हमने फोर्थ ईयर कंसिडर किया है। इन ईयर्स के अंदर हमारी सेल्स क्या आई है, मीनिंग अगर हमने 95 को 0 ईयर कंसिडर किया है तो उसमें हमारे पास 78.7 सेल्स है, लेकिन इसको हमने कोडेड ईयर में 0 कंसिडर कर लिया है। फर्स्ट ईयर में 63, सेकेंड ईयर में 89, थर्ड ईयर में 93 और फोर्थ ईयर में 92.1 सेल्स हमारे पास आई है, जिसकी बेसिस के ऊपर अब हम प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने जो प्लॉटिंग की है वो एक लीनियर इक्वेशन बनाई है। लीनियर इक्वेशन है y head is equals to b naught plus b1 into x1। यहाँ पर हमारे पास जो भी कोडिंग्स आएंगी वो हम दो फॉर्म्स के अंदर प्लेस करेंगे कि b1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन 0 एंड b1 इज ग्रेटर देन 0। उन दोनों के केस में b1 हमें लीनियर ट्रेंड शो कर रहा है बट दिस इज अ नेगेटिव ट्रेंड, b1 ग्रेटर देन 0 हमें लीनियर ट्रेंड ही शो कर रहा है बट दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। यू आर अ मार्केटिंग एनालिस्ट, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यू आर अ मार्केटिंग एनालिस्ट फॉर हैस्ब्रो टॉयज, एक टॉयज शॉप है और इस टॉयज शॉप के अंदर इफ यू आर असाइंड द जॉब ऑफ मार्केटिंग एनालिस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास कोडेड ईयर्स का डेटा भी एग्जिस्ट करता है विच वी आर एनालाइजिंग ऑन द इक्वेशन बेसिस। ये इक्वेशन हमारे पास y आयोटा की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है विच इज 0.6 प्लस 0.7 इंटू एक्स आई। ये 0.7 और 0.6 की जो वैल्यूज है ये हमने कैलकुलेट की है फ्रॉम द ट्रेंड एनालिसिस कि कितना परसेंट चेंज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल x का जो डिटरमिन करता है वेरिएबल y की वैल्यूज को। पहली जो वैल्यू है 0.6 की, ये शो करती है y इंटरसेप्ट कि y के ऊपर या y के ट्रेंड के ऊपर वैल्यूज जब हम प्लॉट करेंगे तो किस पॉइंट से शुरू होंगी, वो पॉइंट जो है वो 0.6 होना चाहिए। दैट इज दिस शोज y इंटरसेप्ट।
0.7 जो कि कोफिशिएंट है x का, this shows the slope. Slope meaning the tendency of change. Tendency of change developed by one variable over another is 0.7 or 7%. So that is something which describes in the example that 95 से 99 का अगर हमारे पास डेटा है तो हमारे पास 1, 1, 2, 2 एंड 4 वैल्यूज प्लॉट हुई है। अगर हम इस फिगर के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज को डालें तो हमारे पास ये रिजल्ट्स जनरेट होंगे। इसकी बेसिस के ऊपर हम 2000, अगर हमारे पास 99 का डेटा अवेलेबल है विच इज़ 4, तो हम फोरकास्ट के केस में 2000 की सेल्स भी या ईयर 2000 की सेल्स को डिटरमिन कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। Now how? Now कोडिंग ईयर्स हमने अगेन उसी फॉर्म में लिए हैं कि 95 को हमने 0 कंसिडर किया है और 2000 को हमने 5th ईयर कंसिडर किया है। बट रिमेंबर हमने फोरकास्ट करनी है 2000 की, हमारे पास 2000 ईयर्स का डेटा मौजूद नहीं है, ईयर 2000 का डेटा मौजूद नहीं है, ईयर 99 तक का हमारे पास डेटा मौजूद है। तो उस केस में अगर हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज गिविंग अस द नोशन ऑफ दैट y इज इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.7, यहाँ पर हमारे पास सेल्स इन यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही है विच आर फ्रॉम 1 to 4। फॉर एवरी ईयर वी आर हैविंग दी सेल्स विच कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ x। जहाँ पर हमारे पास कोडेड ईयर 5 आया है तो उस कोडेड ईयर को हमने x की जगह पर प्लेस कर लिया है और वहाँ से हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज प्लॉट करके एंटिसिपेट कर ली है कि फोरकास्ट 2000 ईयर की कौन सी होगी, या ईयर 2000 में हमारे पास कितनी सेल्स आएंगी। अगर 95 के ऊपर हमारे पास 1 सेल्स है तो 2000 के अंदर हमारे पास 4.1 सेल्स होगी विच इज अगेन बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी फाइन टेबुलेशन ऑफ फिगर्स। ये लीनियर ट्रेंड मॉडल की एक और एग्जांपल है जिसमें हमने मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर डेटा को कंसिडर किया है और कोडेड ईयर फर्स्ट ईयर को कंसिडर किया है। कोडेड ईयर कोई और ईयर भी हो सकता है लेकिन यूजुअली हम उसको फर्स्ट ईयर ही कंसिडर करते हैं। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें जो फर्स्ट ईयर हमारे पास आता है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं और वहाँ से हम कोड्स असाइन करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं वाइल प्लॉटिंग देम ऑन ग्राफ पेपर, वो हमें ये वैल्यूज शो कर रही हैं और इनकी बेसिस के ऊपर ये जो हमारे पास वेरिएशंस हैं, ये जो स्क्वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, ये एक्चुअल वैल्यूज को शो कर रहे हैं। रेड लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है लीनियर ट्रेंड जो कि हमने डेवलप किया है लीनियर ट्रेंड मॉडल की बेसिस के ऊपर, और जो डॉटेड लाइन है ब्लू वाली, ये प्रोजेक्शन शो कर रही है या फोरकास्ट शो कर रही है 2000 की डेटा की। 99 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो हमें एक सॉलिड लाइन, रेड लाइन की फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन जो फोरकास्ट हमने नेक्स्ट ईयर की है वो हमें डॉटेड लाइन में शो हो रही है विच इज अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ द गिवन ट्रेंड विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस कलेक्टेड डेटा। सीजनल जब हमने टाइम सीरीज को प्लॉट किया तो हमने ये वाला एक ग्राफ देखा जो कि हमने इससे पहले भी एनालाइज किया है, जो कि लीनियर है और इंक्रीजिंग इन नेचर है विच इज पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सीजनल प्लॉट हुआ हुआ है जो कि लीनियर है, इनिशियली वो इंक्रीज हुआ उसके बाद डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो फोरकास्टिंग होगी वो हमारे पास नेगेटिव या नॉन लीनियर नेगेटिवली लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। ये पॉजिटिव ट्रेंड है और इस केस में हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड आएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ फोरकास्टिंग आफ्टर लीनियर इज द क्वाड्रेटिक टाइम सीरीज फोरकास्टिंग which is the second method of applying time series trend models. In that case the quadratic time series is used for forecasting trends in which the relationship between response variable y and x is quadratic function. इससे पहले linear function है। linear function वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो, मीनिंग y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और उस वेरिएबल की जो डिग्री है वो भी सिंगल है, मीनिंग जो x की वैल्यू है या जो x का एक्सपोनेंट है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है या जो लाइन है वो लीनियर लाइन है। क्वाड्रेटिक लाइन के केस में हमारे पास जो फंक्शन बनेगा या जो इक्वेशन बनती है
वो उसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनकी जो डिग्री है वो चेंज हो सकती है। जो उसकी डिग्री है दैट विल बी 2, मीनिंग जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा दैट विल बी a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो चेंज हुआ है इक्वेशन के अंदर, जो चेंज आया है वो ये है कि सी एक्स स्क्वायर मीनिंग सेकेंड डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑल्सो बीन एडेड इन द लीनियर वन। तो अगर हमारे पास लीनियर के अंदर एक सेकेंड डिग्री वेरिएबल भी आ जाता है तो जो वैल्यू है, जो इक्वेशन है, वो लीनियर से क्वाड्रेटिक बन जाती है। इस केस में भी हम कॉर्डिनेट ईयर्स को यूज करते हैं। ये वही एग्जाम्पल है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको ए के केस के साथ समझाई है। दिस इज मेंशन इन B0 एंड B1 केसेस। दिस इज यूज फॉर फोरकास्टिंग ट्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक मॉडल है वो सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन को भी शो कर रहा है। जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो लीनियर है, रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीनियर मॉडल एंड लीनियर ट्रेंड की प्लॉटिंग में और क्वाड्रेटिक ट्रेंड की प्लॉटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि अगर नेगेटिव क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है तो वो हमारे पास रेड की फॉर्म में शो हो रही है, विच इज स्लाइटली कर्वी इन नेचर। अगर ये लीनियर होती तो ये स्ट्रेट होती, तो ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होती। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव होती और स्ट्रेट होती तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आती। लेकिन अगर ये थोड़ी सी कर्वी है तो इसका मतलब ये है कि ये कर्व इस वजह से आया है कि इसके अंदर सेकेंड डिग्री ऑफ वेरिएबल भी इन्वॉल्व हुआ है और उसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है। सिमिलरली दिस कैन बी पॉजिटिव क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप एज वेल, जो कि अगेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बॉटम टू टॉप साइड के ऊपर, और कर्वी रिलेशनशिप शो कर रहा है विच इज अ साइन कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सिमिलरली वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव रिलेशनशिप को भी शो कर रहा है, लेकिन वो अगेन साइक्लिक, वो अगेन थोड़ा सा कर्वी है, कर्व की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सेकंड डिग्री ऑफ वेरिएबल भी इन्वॉल्व है और क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप डिस्क्राइब हो रहा है। जब स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट हुई भी, तो वो निशानी है कि वो लीनियर कर्व है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा ट्रेंड उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने प्लॉट की है वैल्यूज एक्स स्क्वायर की भी, एक्स की भी और सिमिलर बी इन वाई इंटरसेप्ट की भी वैल्यू कंसिडर की है। ये वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आती है? इन सब का एक फार्मूला है, लेकिन अगर हम इसको SPSS के ऊपर या इवन एक्सेल शीट्स के अंदर भी डालें तो ये वैल्यूज हमारे पास, ये फार्मूलाज हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमारी बुक्स जो है, या मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसके अंदर भी इनके फार्मूलाज मेंशन है। वी आर नॉट ऑफ द ओपिनियन कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मूलाज को क्रैम करें, इसलिए क्योंकि फार्मूला का पता लगाना कोई इशू नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जो फार्मूलाज हैं वो एम्बेडेड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए फार्मूला को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यूजुअली इतना लेंथी फार्मूला है जिसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी एक बटन दबाने से सॉफ्टवेयर में आ जाती है, लेकिन यस वी शुड नो कि वो फार्मूला क्या है और वो किस किस्म की रिलेशनशिप को शो कर रहा है, विच इज़ अवेलेबल इन ऑल बुक्स, विच इज़ अवेलेबल इन इंटरनेट एज वेल। लेकिन जो क्रैम करने वाला जो कंसिडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि फार्मूला हमें पता लग सकता है, लेकिन उस फार्मूला के बेसिस के ऊपर जो डिडक्शंस हैं या जो चीज़ हमने फोरकास्ट करनी है वो मेजर एनालिसिस है, या वो मेजर पर्पस है फोरकास्टिंग का, या वो मेजर पर्पस है टाइम सीरीज़ का। और अगर हम एक फार्मूला को बहुत अच्छी तरीके से क्रैम कर लें लेकिन हम उसके मतलब को या उसके एनालिसिस को रीड नहीं कर सकते या उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस अप्रोच का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम जो ट्रेंड यूज़ करते हैं या जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल है, जिसके अंदर हमने एनालाइज की है दो वैल्यूज विद 2 डिग्री वेरिंग डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स, और यहाँ से हमने कोडेड डेटा बिल्कुल उसी फॉर्म में कंसिडर किया जिस तरह लीनियर में किया था। फर्स्ट डेटा को, या जो पहला साल जो जहाँ से हमें डेटा अवेलेबल है उसको हमने 0 प्लॉट किया है और बाकी सालों को 1, 2, 3 के साथ हमने शो किया है।
और वहाँ से हमने सेल्स एंटिसिपेट की है। वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम कंसिडर की थी, बस उसके अंदर हमने सेकंड डिग्री ऑफ वेरिएबल भी यूज़ कर लिया है। सेकंड डिग्री ऑफ वेरिएबल हमारे पास कहाँ से आएगा, या B2 हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, ये फॉर्मूलाज आपको बुक्स से मिल जाएंगे या नोट्स जो आपको इन स्लाइड्स के साथ मिलेंगे, यू कैन सी फ्रॉम दैट एज वेल। Third method of using the trend is the exponential time series model. In exponential time series model, we again use this model for forecasting trends, and this the relationship between variable is exponential in nature. पहले केस में जो रिलेशनशिप थी वो लीनियर थी, मीनिंग उसके अंदर एक डिग्री ऑफ वेरिएबल यूज हुआ था। क्वाड्रेटिक के केस में सेकेंड डिग्री ऑफ वेरिएबल भी यूज हुआ है, मीनिंग स्क्वायर भी यूज हुआ है। हमने B2x² की वैल्यू एनालाइज की है और वहां से हमने कर्वी ट्रेंड एनालाइज किया है, उसकी बेसिस के ऊपर फोरकास्टिंग की है। एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज के केस में हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स आएंगे जो कि ऐसी रिलेशनशिप को शो करे होंगे जिसमें x और y की रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल है, मीनिंग y might be equals to e raised to power x। उस केस पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो इस तरह से शो होगा कि अगर x की वैल्यू b की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, मीनिंग b1 इज लेस देन 1, तो वहां पर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल कर्व है दिस विल शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड विच इज अगेन स्लाइटली कर्वी, एंड इफ द वैल्यू ऑफ b1 इज ग्रेटर देन 1 तो वहां पर हमारे पास पॉजिटिव कर्वी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, विच इज अ साइन दैट दिस इज एन एक्सपोनेंशियल टाइम सीरीज मॉडल। एक्सपोनेंशियल को भी हम वेटेड की फॉर्म में स्मूथ आउट करते हैं ताकि हमारे पास जो रिस्पांस है उसकी फोरकास्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। एक्चुअल डेटा को भी प्लॉट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को वेटेड फॉर्म में भी प्लॉट करते हैं, और वेटेड फॉर्म में बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं जो हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में यूज़ की थी व्हेन देयर वाज नो ट्रेंड। तो बिल्कुल वही मेथडोलॉजी, वही टेक्निक जो है वो हम एक्सपोनेंशियल वेटिंग में भी यूज़ करते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। यहाँ पर हम लॉग लेते हैं, लॉग डिस्क्राइब करता है चेंज इन y वेरिएबल्स फ्रॉम log of b0। log of b0 बेसिकली हमारा y इंटरसेप्ट है, और log of b1 हमें डिस्क्राइब करता है स्लोप और चेंज इन b1। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो हम एग्जिस्ट करा, ये वैल्यूज भी हमने एक्सेल से उठाई है, एक्सेल के ऊपर प्लॉट की थी, और एक्सेल के अंदर ये सारे फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। जो बेसिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है लीनियर ट्रेंड का, दिस इज y हेड इज इक्वल्स टू b0 b1 रेज्ड टू द पावर x, ये जो आपको बिल्कुल इनिशियली शो हो रहा है, b0 इंटू b1 रेज्ड टू पावर x। इसको हम रीड करते हैं दोनों साइड्स के ऊपर लॉग लेके ताकि हमें इनका चेंज पता लगे। log ऑफ y विच इज इक्वल्स टू log ऑफ b प्लस x b log ऑफ b1। तो जब हम ये बिल्कुल एक लॉगरिथमिक फंक्शन को जिस तरह से हम एक साइंटिफिक नोटेशन से चेंज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब हम लॉग लेते हैं b1 इंटू एक्स का, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाता है, तो x log b1। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रेंड बन गया है वो ये है। कैलकुलेटर से भी या एक्सेल शीट्स के ऊपर भी अगर आप कोई भी वैल्यू अप्लाई करें तो आपको उसका लॉग आराम सुकून से मिल सकता है, उसमें कोई ऐसा जितना कोई मेजर कैलकुलेशंस नहीं है। इसको अगर हम डिटरमिन करें तो हमारे पास बिल्कुल उसी तरह की वैल्यूज आती हैं जो कि जिस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी भी प्लॉटिंग हम करते हैं, और जिस इस चीज़ की प्लॉटिंग हम करते हैं तो हमें इस किस्म का रिजल्ट मिलता है, विच इज़ अगेन अ क्वांटिटेटिव अप्रोच इन forecasting technique. Last model for the trend analysis is the auto-regressive model. Auto-regressive technique के अंदर भी हम forecasting के लिए मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक बहुत साउंड डिस्क्रिप्शन देता है हमें फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर। इससे पहले आपने नोट किया होगा कि हमने जितने भी मॉडल्स को स्टडी किया है वो हमें 1 साल या 2 साल से रिलेटेड फोरकास्ट देते हैं, लेकिन जो रिग्रेशन है वो हमें थोड़े से ज़्यादा, थोड़े लंबे अरसे की फोरकास्ट दे सकता है। ये एक इसके अंदर फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है वो हमें रिलेशनशिप बताता है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ, कि एक वेरिएबल के अंदर कितना डिग्री ऑफ चेंज आता है दूसरे वेरिएबल की वजह से, that how much one variable is regressed towards the other variable. So this is actually the domain of auto-regressive modeling technique. This is just like a regression model in which we used to take independent variables
in the form of yi1 and yi2 so on up to yi3, which assumes data which are correlated in the past data. Like for example, अगर हमने जिस तरह लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ, तो इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग अगर हम मल्टीपल ईयर्स में कर रहे हैं और हेल्थ का हम एक स्पेसिफिक फिगर ले रहे हैं, तो ये दोनों फिगर्स जो है ये रिलेट करेंगे. Once we increasing the rate of smoking, तो definitely the rate of health will be decreasing. कि जब हम स्मोकिंग की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, जब एक स्मोकर ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसकी हेल्थ डिक्रीज होती है, ख़राब होती है. तो इसका मतलब ये है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, एक नेगेटिव रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास आ रहा है इन दोनों वेरिएबल्स की वजह से. मीनिंग ये दोनों चीज़ें जो है ये कोरिलेट करती है और एक कॉजल अप्रोच इसमें आ रही है. कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप हम शो करें कि अगर एक वेरिएबल किस किस्म की रिलेशनशिप कॉज करता है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, या विद चेंज इन वेदर कंडीशंस व्हाट इज द सेल्स रिस्पांस टुवर्ड्स ड्राई फ्रूट्स. कि अगर टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा है तो सेल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इंक्रीज होगी. तो अगेन एक कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप है. कॉज है कि वेदर कंडीशंस जो है वो या टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा है, और रिस्पांस जो इसका जो इफेक्ट आया वो ये है कि जो प्राइसेस हैं या जो सेल्स हैं ड्राई फ्रूट्स की वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई. अज्यूम करता है डेटा विच इज ऑलरेडी कोरिलेटेड इन पास्ट और एस्टिमेट करता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स को के मेथड को. ये वही एग्जांपल है जो हमने इंटरबस कैंपस जो हमारी एक चल रही है उसके ऊपर जितने स्टूडेंट्स इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं उनका एक ट्रेंड हमने शो किया है टाइम सीरीज डेटा के केस में. ये ऑटो को रिलेटेड डेटा है जो कि हमारे पास दो किस्म के फंक्शंस को रिलेट कर रहा है कि दो किस्म की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका आपस में किस किस्म का रिलेशनशिप है. दे वर को रिलेटेड एक्चुअली. इसकी एक एग्जांपल हम अगर कंसिडर कर लें कि इन ईयर्स के अंदर एक ऑफिस कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेशन है which has required a number of office units in thousands over the last 8 years, developed the second order autoregressive model. Second order autoregressive model का मतलब ये है कि हमने regression analysis करना है of second degree variable. मुख्तलिफ ईयर्स है इसमें 92 से 99 तक, जिसमें हमें यूनिट्स ऑफ वैल्यूज नजर आ रही है 4, 3, 2, 3 एंड सो ऑन अप टिल 6. ऑटो रिग्रेसिव के केस में हमने इस तरह से एप्लीकेशन की है कि हमने पहले 2 सालों को कंसिडर किया है और एक इंटरप्रिटेशन ली है कि इन फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर हमारा जो एवरेज आई है वो लीनियर एवरेज जो है वो हमारे पास एक्सेस नहीं करती. 94, 95, 96 इयर्स के केस में हमारे पास जो वाई ट्रेंड है वो 2, 3 और 2 के केस में था. उसमें से हमने जो वैल्यूज एंटिसिपेट की है i-1 के केस में वो हमारे पास 4, 3, 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करी है, और i-2 के केस में पहले 2 साल के केस को हम निगेट कर देंगे, पहले 2 सालों को हम निगेट कर देंगे. अगर ये थर्ड डिग्री ऑटो रिग्रेशन हो तो हम यहाँ पर y इंटू i-3 लेंगे और उसमें पहले 3 सालों की वैल्यूज को निगेट करेंगे और चौथे साल से वैल्यू कंसिडर करना शुरू करेंगे. आई एम सॉरी ये वैल्यूज जो है थोड़ी सी लाइन में नहीं आई हुई, इनको एक लाइन में होना चाहिए और शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन ये दिस हैज टू बी इन लाइन. और ये आपको एक ओवरऑल ट्रेंड शो करेंगे. जब हम पिछले वाली इक्वेशन से तो पहली वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या ट्रेंड शो होता है. अगेन ये y इंटरसेप्ट का और वेरिएबल 1 और वेरिएबल x को कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको बुक से या नोट से मिल जाएंगे. यहाँ पर हम सिर्फ बात करें कि इसका ट्रेंड किस किस्म का होगा और कौन सी वैल्यूज़ किस तरह से इसमें से निकाल के हम प्लॉट कर सकते हैं ताकि हमारे पास इवेल्युएशन किया जा सके. यहाँ पर हम जो क्वांटिटेटिव फोरकास्ट की टेक्निक्स यूज़ करते हैं या जो इवेल्युएशंस करते हैं वो ये है कि हम सिलेक्ट करते हैं सेवरल फोरकास्टिंग मेथड्स और उसकी बेसिस के ऊपर हम फोरकास्ट करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में. फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा which helps in generating the forecasted results, and not only helps in generating forecasted results but also helps in evaluating these results. Then we work on selecting the best method and we work on the future forecast method and continuously monitor that what is being forecasted. Forecasting की जो guidelines है वो ये है कि इसमें कोई पैटर्न या इसके अंदर कोई डायरेक्शन जो है वो हम फॉलो नहीं करते. जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उसको हम फोरकास्ट वैल्यूज़ के साथ रीड करते हैं
और वहाँ से मल्टीपल एरर्स को कंसिडर करते हैं, मल्टीपल एरर्स को का जो टेंडेंसी है वो उसमें से निकाल देते हैं और यहाँ से हम फर्दर उसको उस टेक्निक उस फोरकास्ट को इवेल्युएट करते हैं। फिर जितनी ज़्यादा थोड़े अरसे के लिए फोरकास्ट होगी उतनी उसके अंदर एरर मार्जिन कम होगा। जितनी लंबे अरसे के लिए फोरकास्ट करेंगे, 5-6 सालों के लिए, 10 सालों के लिए फोरकास्ट करेंगे तो उसके अंदर एरर रेट ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स की इंटरफेरेंस होती है। दूसरा ये कि इट इज़ जो स्मॉलर साइज ऑफ इवेंट होता है, जो स्मॉलर साइज ऑफ फोरकास्ट है, दिस इज़ यूजुअली मेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, और उस केस में हम इसकी जो मेजरमेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू द डेविएशंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्म में, विच जनरेट्स एक्यूरेट रिस्पॉन्स यूजुअली। Comparatively, it's a simple method to apply, and the techniques which we used to follow in this method are comparatively easy to apply. ये इसके रेगुलर से ट्रेंड्स आते हैं हमारे पास, समटाइम्स दे आर स्कैटर्ड एंड समटाइम्स दे आर शोइंग अ रेगुलर ट्रेंड विच इज़ लीनियर, जो कि एक स्पेसिफिक लाइन से रैंडम, साइक्लिक, सीजनल और रेगुलर ट्रेंड को एनालाइज करता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो हम टाइम सीरीज को और उसके कंपोनेंट्स को फोकस करते हैं। दैट इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन टुडेज लेक्चर। वी हैव एनालाइज्ड कि अगर हमारे पास एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो उस केस में हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल और ऑटो रिग्रेसिव मॉडल अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम सीरीज में कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा तो हम उस केस में मूविंग एवरेजेस को या फिर स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। टाइम सीरीज इज प्योरली मेंट फॉर फोरकास्टिंग। जो भी हमारे पास टाइम सीरीज की टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, वेदर द मॉडल इज डिस्क्राइब्ड और नॉट, उन दोनों केस में हम नेक्स्ट ईयर का या फ्यूचर ईयर्स का डेटा जो है वो एंटिसिपेट करते हैं या फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। सिर्फ एक फॉर्म डेटा की एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमारे पास जिस तरह हमने लास्ट टाइम बॉक्स जेनस्किन अप्रोच यूज़ की थी, उस केस में भी हमारे पास 2-3 अप्रोचेज आती हैं जिसमें से हम बेस्ट अप्रोच को सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप कि इस लेक्चर की बेसिस के ऊपर हम फोरकास्टिंग को या डिसीजन मेकिंग को एक्सटेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।